Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back once again after iftar. While both of the videos you're going to get after iftar, but just wanted to tell you that I'm with you in this. Anyways, in today's lecture, we are going to study about language extinction and language death. Whereas in the previous lecture, we did study a little about language endangerment and language preservation. Today's our lecture is entirely going to be how language extincts and how language dies and what is the difference between the two and what is the case of Pashto that we were priorly discussing in our class. So without wasting any time, let's get started with it. Now, for in the very first place, you need to understand the concept of language extinction and language death. And for that, you need to know the difference between them. So, language, we all know, is a living entity that evolves, adapts, and sometimes vanishes. Zahir hai, language is a means of communication since its very origin, जो कि बहुत ज़्यादा controversial है because we have a lot of theories about language's origin. Still, we know कि ये एक living entity है which is evolving right from the start. शुरू से वो evolve हो रही है and it's adapting to the circumstances, to the society, to the culture, जो कि हम very much is social linguistics में पढ़ते हैं. And sometimes it also vanishes. And why it vanishes, how it vanishes, where it vanishes, what is the process, वो सारा कुछ हमने आज इस lecture के अंदर पढ़ना है. Now, you and I know when a language disappears, it is just not a loss of words, but also a loss of cultural identity, historical knowledge and unique ways of thinking. ज़ाहिर है एक language तो ख़त्म नहीं हो रही. मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बात कि language is an entire code of conduct. तो अगर entire code of conduct है language, तो that means entire code of conduct is vanishing when a language is disappearing. उसमें उसका तमाम literature, उसमें तमाम उसकी cultural history, उसके societal norms, उसके linguistic norms, उसकी historical norms, every single thing vanishes. अब linguists जितने भी हमारे पास हैं, they differentiate between language extinction and language death. कैसे? वो कहते हैं कि extinction occurs when the last native speaker dies. कि जब एक लैंग्वेज का सबसे आखिरी नेटिव स्पीकर जिसकी वो मदर टंग है, जिसकी वो फर्स्ट लैंग्वेज है, जिसकी वो नेटिव लैंग्वेज है और वो उसका लास्ट नेटिव स्पीकर है, अगर वो भी मर जाए तो लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जाती है. Whereas linguists कहते हैं कि language death happens when a language ceases to be used in everyday communication and loses its function as a primary means of communication. कि language death तब होती है कि उसमें उसका नेटिव स्पीकर्स मरते तो नहीं हैं, लेकिन वो एवरीडे कम्युनिकेशन में ख़त्म हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है, उसका यूजेज ख़त्म हो जाता है, उसका प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है, जो कि क्या है प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो वो बेसिकली रहता ही नहीं है मीन ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो लैंग्वेज एक्सटेंशन और लैंग्वेज डेथ में है, स्टेटेड बाय एंड डिलीवर्ड टू अस बाय आवर लिंग्विस्ट्स. अब चूँकि पिछले लेक्चर में वी स्टडीड कि व्हाट इज़ लैंग्वेज एंडेंजरमेंट और वो उसके डिफरेंट फैक्टर्स एंड यू नो हाउ टू प्रिजर्व इट एंड ऑल, एंड देन वी डिस्कस्ड एन एग्जांपल एज वेल. In this language, we are going to talk about the stages of language endangerment. के एक language के endangerment के भी ऐसे. अब ठीक है, मैं कहती हूँ language endangered है. कैसे endangered है, किस level पे, किस stage पे? जैसे कोई बीमारी होती है, उसका कोई level, कोई stage होता है, वैसे ही language endangerment के अपने stages होते हैं. Now a language does not die. जाहिर है Rome was not built in a day. हम ये बहुत बार सुनते आते हैं ये proverb. तो ज़ाहिर है एक काम एक झटके में तो नहीं होता है, टेक्स एजेस, इट टेक्स टाइम, एक पूरा प्रोसेस उसमें लगता है. अब लैंग्वेज भी एक रात में नहीं मरती, रादर इट गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस और स्लोली एंड ग्रेजुअली इट डाइज. और वो क्या स्टेजेस हैं जिसमें सबसे फर्स्ट आ जाता है वल्नरेबल, द स्टेज ऑफ वल्नरेबिलिटी, used by all generations but restricted to certain domains. यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज जो कि तमाम जनरेशन्स इस्तेमाल कर रही हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सारे, लड़के लड़कियां नौजवान, मतलब एक सारी जनरेशन्स के लोग बोल रहे होते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक सर्टेन डोमेन को रिस्ट्रिक्ट की गई होती है. जैसे हमने पिछली लैंग्वेज पढ़ी थी जिसकी हमने एक्सटेंशन का पीछे
लेक्चर में पढ़ा था। दो इस्तेमाल सब कर रहे होते हैं, लेकिन एक एरिया तक लिमिटेड रह जाती है, एक सर्टेन डोमेन तक लिमिटेड रह जाती है। इस स्टेज को वल्नरेबल स्टेट, कि लैंग्वेज एक वल्नरेबल स्टेट में है, दो सब इस्तेमाल कर रहे हैं बट लिमिटेड एरिया के अंदर इस्तेमाल हो रही है, उसके अलावा उस डोमेन के बाहर उस लैंग्वेज की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एंडेंजरमेंट। इसके बाद का जो स्टेज आता है उसको हम कहते हैं डेफिनेटली इंडेंजर्ड स्टेज। ये वो स्टेज होता है जहाँ पे लैंग्वेज इज स्पोकन बाय ओल्डर जनरेशन्स बट नॉट ट्रांसमिटेड टू द चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल, मी एंड माई स्पाउस मे बी, और मे बी योर पेरेंट्स और माई पेरेंट्स। कभी कभी होता है ना फैमिली में ऐसे, दे स्पीक इन अ लैंग्वेज बट दे डोंट टीच अस दैट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स एक लैंग्वेज बोलते हैं और वो आपको नहीं आती, वो सिर्फ वो ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्होंने वो लैंग्वेज आपको सिखाई नहीं, आपको ट्रांसमिट नहीं की। उस सिचुएशन में लैंग्वेज एक डेफिनेट एंडेंजर्ड स्टेट में चली जाती है। ये वो स्टेट है जहाँ पे लैंग्वेज अब वल्नरेबल से वन स्टेप अहेड हो चुकी है, क्योंकि उसकी ट्रांसमिशन ही नेक्स्ट जनरेशन तक बंद कर दी जा चुकी है। इसके बाद एक और भी वन स्टेप अहेड एक और स्टेज आता है जिसमें हम कहते हैं कि द लैंग्वेज इज सिवियरली इंडेंजर्ड, बड़े ख़तरे में जा चुकी है वो। और वो स्टेप होता है जहाँ पे सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स हमारे वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आई रिमेंबर, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स फ़ा की बोली बोलते थे, उसमें मफ़े तफ़म सफ़े और इस तरह की बातें करते रहते थे। मैंने ये लाइन किसी से पूछ के सीखी है और मुझे इसका सही से मतलब भी नहीं आता। पता नहीं मैं सही कह रही हूँ या गलत। मैं सिर्फ़ आपको बताना ये चाह रही हूँ कि मुझे ये पता था कि मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स फ़ा की बोली इस्तेमाल करते थे। लेकिन ना उन्होंने मेरे पेरेंट्स को ट्रांसमिट की, ना मेरे पे ज़ाहिर है अगर उधर नहीं आई तो मुझ तक तो सवाल ही नहीं पैदा। तो क्या हुआ, ये लैंग्वेज मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स तक रह गई। तो डू यू सी दैट इज़ अ सिवियरली इंडेंजर्ड स्टेट जहाँ पे अब लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ख़तरे में जा चुकी है। ये वो वाली स्टेट होती है। और जब लैंग्वेज एक्सट्रीम, वो जो लास्ट स्टेज होती है एक्सटिंक्ट होने से पहले, जो सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेट, वो तब होती है व्हेन द लैंग्वेज इज स्पोकन बाय अ फ्यू एल्डरली इंडिविजुअल्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और वो हमने क्या डिस्कस किया था? वो हमने डिस्कस किया था बदेशी लैंग्वेज के बारे में। बदेशी लैंग्वेज एक फ्यू एल्डरली पीपल उधर बदेशी लैंग्वेज बोल रहे थे उस एरिया के, और वो भी अब पश्तो की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो खैर वो लैंग्वेज तो ऑलमोस्ट फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। बट मैं आप सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जब कुछ चंद बुज़ुर्ग एक ट्राइब के या एक फैमिली के चंद लिमिटेड हैंडफुल जो कि वो एक लैंग्वेज बोलते हैं, वो एक ऐसी स्टेट है उस लैंग्वेज के लिए व्हेन इट्स क्रिटिकली endangered, and that's the very last stage. After that the language will ultimately shift to the status of extinct or extinction, और extinct इसके बाद बड़ा नेक्स्ट स्टेटस है जहाँ पे no living speakers remain, वो लैंग्वेज ख़त्म, बस the end उस लैंग्वेज का। तो ये हमारे पास स्टेजेस हैं लैंग्वेज एक्सटेंशन के, सॉरी आई मीन टू से लैंग्वेज एंडेंजरमेंट के, और फाइनल स्टेज इसका एक्सटेंशन है, राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, कुछ एक्सटिंक्ट और डेड लैंग्वेजेस की। जबकि अब हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि एक्सटिंक्ट लैंग्वेज और डेड लैंग्वेज के बीच में फ़र्क क्या, एक्सटिंक्शन और डेथ के बीच में क्या डिफरेंस है, हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तो सेवरल लैंग्वेजेस थ्रू आउट हिस्ट्री हैव गॉन एक्सटिंक्ट ड्यू टू कॉलोनाइजेशन, कल्चरल एसिमिलेशन, माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सॉरी। हमें पता है कि इट इज़ कॉलोनाइजेशन जिसने कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को एक्सटिंक्ट कर दिया है। ज़ाहिर है जब कॉलोनी क्रिएट होती है और कोई आके कॉलोनाइज करता है और अपनी कॉलोनीज क्रिएट करता है, तो ज़ाहिर है जो हमने पिछले पिजन एंड क्रियोल में पढ़ा था, जो सुपर स्ट्रेट लैंग्वेज होती है या जो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है, जो लेग्जिफायर लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो वो लैंग्वेज का ज़्यादा डोमिनेंस होता है, और जो सबस्ट्रेट लैंग्वेज होती है या वो लैंग्वेज जो कि कॉलोनीज़ की होती है, ज़रा लोअर होती है, सबमिसिव होती है, तो ज़ाहिर है उस पर डोमिनेंट का ज़्यादा असर होता है। एंड यू नो फिर थ्रू एंड थ्रू ऐसे होते होते कॉलोनाइजेशन सर्व्स टू बी वन ऑफ अ मेजर पार्ट इन लैंग्वेज एक्सटेंशन। इसी तरह हमारे पास कल्चरल एसिमिलेशन है कि एक छोटा कल्चर अपने आप को किसी
किसी स्टैंडर्ड या किसी डोमिनेंट कल्चर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूरा करते करते अपना कल्चरल हेरिटेज ख़त्म हो जाती है, उसकी भूल जाता है। तो एट टाइम्स ये कॉन्सेप्ट भी, आप कल्चरल एसिमिलेशन का कॉन्सेप्ट आप जानते भी हैं, हमने डिस्कस भी किया हुआ है क्लासेस में। एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर रीजंस कि जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि लैंग्वेज एक्सटिंक्शन होती है, लैंग्वेज डेथ, बल्कि इधर तो ज़्यादातर लैंग्वेज डेथ होती है कि दो आपको आती है बट आप उसे कम्युनिकेट, उसको डेली यूजेज में नहीं इस्तेमाल करते। फॉर एग्जाम्पल हमारे डायस्पोरा राइटर्स, चलो ठीक है, दे समहाउ वो इस्तेमाल तो कर लेते, उनको उनकी लैंग्वेज तो आती है, बट येट अभी तो डिफरेंट ऐसे नॉवेल्स मैं देख रही हूँ जो पब्लिश हो रहे हैं जिसमें थ्रू आउट हमारे डायस्पोरा राइटर्स, पहले फिर भी थोड़ा बहुत उसमें उर्दू हमारी रीजनल लैंग्वेजेस बाकियों का टच होता था, अब तो कल्चर भी ऑलमोस्ट चेंज होता जा रहा है। इसी तरह वो हमारे रिलेटिव्स या हमारे वो पाकिस्तानी या जो लोग हमारे फॉरेन में रहते हैं, मतलब उनकी जनरेशन्स टू नेक्स्ट जनरेशन्स, दो दे नो अबाउट देयर लैंग्वेज, येट लैंग्वेज डेथ उनके लिए हो चुकी है, उनकी अपनी कल्चरल या उनकी अपनी रीजनल या उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेज की। तो अब इसमें ज़ाहिर है कि माइग्रेशन भी एक पार्ट है जिसकी भी मैंने बात की है कि ये कल्चरल एसिमिलेशन मोस्टली माइग्रेशन की वजह से भी होता है। व्हेन यू माइग्रेट फ्रॉम वन कल्चर और वन प्लेस टू अदर प्लेस, और फिर वो कल्चर आप अपने ऊपर जो है उसमें आप एसिमिलेट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन रहा है, जो हमारी ग्लोबल लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, वो हम पे इतना गलबा पा रही हैं। और नॉट इवन टॉकिंग ऑफ आवर सेल्व्स, बट ये प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से थ्रू आउट द ग्लोब आप देखिए बहुत सारी लैंग्वेजेस डाई भी कर चुकी हैं, उनकी डेथ भी अकर हो चुकी है और एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है। मैं उनमें से आपको एक मेजर लैंग्वेज की बात करती हूँ, वन ऑफ द वेरी मेजर वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस ऑफ हिस्ट्री विच इज़ लैटिन। और लैटिन की बात अगर मैं करूँ तो लैटिन वंस द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द रोमन एम्पायर, राइट। हुआ क्या था, इट लॉस्ट its status as a spoken language and evolved into the Romance languages such as Spanish, French and Italian. असल में बात क्या थी कि लैटिन ओरिजिनली जो है इटली में थी, बोली जाती थी, एंड देन फिर थ्रू आउट यूरोप रोमन एक्सपेंशन के टाइम में ये जो है फैलती चली गई, फैलती चली गई। तो रोमन एम्पायर में एक लिंगुआ फ्रैंका हुआ करती थी। इसने अपना स्टेटस कब ख़त्म किया एज अ स्पोकन लैंग्वेज, और फिर इसमें एक और चीज़ आती है तब जब आपका यहाँ पर जो रोमांस लैंग्वेजेस हैं वो डेवलप होना शुरू हो गई। रोमांस लैंग्वेजेस कब डेवलप होना शुरू होगी मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप रोमांस लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश करें। रोमांस का जो वर्ड है ये रोमानिकस से आता है जिसका मतलब है ऑफ रोम, और ये ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो कि वल्गर लैटिन से इवॉल्व हुई हैं। वल्गर लैटिन कौन सा डायलेक्ट था लैटिन का, ये एवरीडे स्पोकन फॉर्म ऑफ लैटिन थी, उसका एवरीडे स्पोकन एंड फेमस डायलेक्ट था जो कि रोमन एम्पायर के टाइम में कॉमन पीपल इस्तेमाल करते थे। तो जैसे 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 एक्सप्लोरेशन होता गया ये फेड आउट होता गया और ये एक्सटिंक्ट हो गया। दो आपको ये मैं बता दूं कि चूँकि उस वक़्त भी ये एक लिटर्जिकल लैंग्वेज थी, एक स्कॉलरली लैंग्वेज थी। लिटर्जिकल लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो कि सरमन्स में, जो कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में इस्तेमाल की जाती है और बहुत हाई स्टैंडर्ड की लैंग्वेज थी। ज़ाहिर है कि लैटिन द बाइबल वाज रिटन इन लैटिन, और वन ऑफ द वेरी फेमस लिटर्जिकल लैंग्वेज रोम उधर इस्तेमाल की जाती थी। उसके रोमन चर्च में इस्तेमाल की जाती थी और कॉमन मैन इसे समझ नहीं सकता था। लैंग्वेज ऑफ हाई प्रेस्टीज थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इसकी डेथ होना शुरू हो गई। आज भी इट सर्वाइव्स इट्स स्टेटस एज अ लिटर्जिकल एंड स्कॉलरली लैंग्वेज। दो अभी भी लिटर्जिकल लैंग्वेज है, इसमें इसके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इसके सरमन्स दो उसके लिए इस्तेमाल होती है ये लैंग्वेज, और स्कॉलरली लैंग्वेज है, लेकिन स्टिल it is considered a dead language. Why? Because no speaker exist. अभी ये क्या रीज़न था? ये वही रीज़न था जो हमने ऑलरेडी लिटरेचर में डिस्कस किया है कि क्योंकि बिकॉज अ कॉमन मैन वाज नॉट अलाउड टू लर्न एंड स्पीक लैटिन, और इंग्लिश
because language was a sorry Latin was a language of noble class, noble people, और English common man language थी उस वक्त, जब तक इंग्लिश ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई थी। तो चूंकि लैटिन पास डाउन ही नहीं की गई, इसका प्रमोशन ही नहीं हुआ, कॉमन मैन में नहीं किया गया, दैट इज़ वाई इट इज़ नाउ अ डेड लैंग्वेज। अभी भी रिलीजन में तो है, बाइबल में, स्क्रिप्चर्स में वहाँ पर लिखी है, लेकिन डेथ हो चुकी है इस लैंग्वेज की। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे पास हिस्ट्री के लैंग्वेज की डेथ की। इसके बाद एक्सटिंक्ट नहीं हुई, बट लैंग्वेज डेथ अकर हो चुकी है इसकी। Then we have another very important language, Coptic language, the Egyptian Coptic language. It was the last stage of the ancient Egyptian language, used in religious contexts by Christian communities in Egypt. Again, Coptic language was a liturgical language of Egyptian क्रिश्चियन कम्युनिटीज़। वो वहाँ पर कॉप्टिक लैंग्वेज में उनका लिटर्जिकल और उनका स्कॉलरली लिटरेचर प्रोड्यूस किया जाता था, जितने भी उनके रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, ठीक है। और फिर होते होते वो लैंग्वेज वहाँ पर उसकी डेथ अकर हो गई, बिकॉज कि अगैन वही बात है कि एंशियंट इजिप्शियन लैंग्वेज थी, और एंशियंट इजिप्शियन लैंग्वेज का भी लास्ट स्टेज था, क्योंकि ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ जैसे लैटिन बिल्कुल वैसे ही सिर्फ लिटर्जिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। तो कोई डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। दो अभी ये है कि ग्रेजुअल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फिर हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे जैसे ज़ाहिर है कि इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट होना शुरू हो गया, अरब जब इस्लाम का गलबा आ गया, और अरबिक लैंग्वेज उसके बाद इतनी फेमस हो गई कि उसके बाद जो कॉप्टिक लैंग्वेज है वो ख़त्म होना शुरू गया, होते होते नाउ इट इज़ अ डेड लैंग्वेज। सिर्फ रिलीजियस सर्विसेज के लिए अभी भी इस्तेमाल की जाती है, एंड फर्दर इट सर्व्स नो पर्पस। नेक्स्ट इज़ द मैंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैंग्स। अच्छा, अब हम जो मैंक्स की बात करते हैं, आइल्स ऑफ मैन, ब्रिटिश आइल्स। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी ज्योग्राफी समझाती हूँ। तो आइल्स ऑफ मैन एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है इन द ब्रिटिश आइल्स। नाउ व्हाट इज़ ब्रिटिश आइल्स? इट इज़ अ geographical term that refers to a group of islands which are located in the north west Europe. उधर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो लोकेटेड है उसमें। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इट इंक्लूड्स ग्रेट ब्रिटेन, then again it includes Ireland, both Northern Ireland and Republic of the Ireland। और उसके अलावा ओवर 6000 स्मॉलर आइलैंड्स भी हैं, जिसमें वन ऑफ विच इज़ ये आइल्स ऑफ मैन। और आइल्स ऑफ मैन एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब वहाँ पे एक लैंग्वेज बोली जाती थी जो जिसका नाम था हमारे पास Manx. Now, Manx, a Celtic language, became extinct in 1974 when its last native speaker, Ned Midrall, died. ये एक सेल्टिक लैंग्वेज थी, और ये लैंग्वेज एक्सटिंक्शन की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ये एक्सटिंक्ट हो गई थी 1947 में, जब इसका सबसे लास्ट नेटिव स्पीकर, उसका नाम था नेड मिड्राल, वो फौत हो गया, वो मर गया। अच्छा, फर्दर जाने से पहले मैं आपको सेल्टिक लैंग्वेज के ऊपर, जिन्हें नहीं पता, ये पता होना चाहिए कि सेल्टिक लैंग्वेजेस एक फैमिली है लैंग्वेजेस की, दैट वाज आई मीन यूरोप के एंशियंट, मतलब यूरोप का के जो लोग थे, एंशियंट ग्रुप था यूरोप में, मतलब एंशियंट ग्रुप ऑफ पीपल, ये आपको मैं बता दूं वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में वो लोग बोला करते थे इस लैंग्वेज को। एक सिविलाइजेशन थी, और दैट ऑफ द सेल्ट्स। अगर आपको याद हो, हमने हिस्ट्री में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। अच्छा, ये जो मैं जिस सिविलाइजेशन की बात कर रही हूँ, ये इट थ्राइव्ड अंटिल द एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के एक्सपेंशन तक तो ये थी, फिर उसके बाद गायब हो गई। तो वो लोग, वो ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, वो कॉमन लैंग्वेजेस, मैं अगर आपको ऐसे कहूँ कि सेल्टिक लैंग्वेजेस इज़ अ कॉमन लैंग्वेज फैमिली दैट वाज यूज्ड बाय द सेल्टिक पीपल ऑफ यूरोप। और अगर उसमें भी कहूँ कि यूरोप में वो कौन से सेल्टिक पीपल थे, who were an ancient group of tribes, बहुत पुराने,
ये हु लिव्ड अक्रॉस ये सारा वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और वो लोग वो ग्रुप वो सिविलाइजेशन तब तक थ्राइव की जब तक कि रोमन एम्पायर था, और वो लोग इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे। तो मैं आपको बताऊं कि इस लैंग्वेज फैमिली में मैंक्स भी एक लैंग्वेज है, सेल्टिक लैंग्वेज फैमिली में एक लैंग्वेज मैंक्स भी है, और वो अब एक्सटिंक्ट हाँ एक चीज़ है, एक्सटिंक्ट तो हो चुकी है, हाउ एवर अभी भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं टू रिवाइव इट, इसको रिवाइव करने के लिए। और हमारे पास बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हुई है, क्योंकि अभी काफ़ी मतलब ये एक लैंग्वेज रिवाइवल की भी एग्जांपल है, क्योंकि एक्सटेंशन के बाद इसके लिए बहुत एफर्ट्स की गई कि ये लैंग्वेज रिवाइव हो जाए, और अभी एक स्मॉल एरिया में अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज की लर्न करें, तो थोड़े से लोग बोल रहे हैं। तो येस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज रिवाइवल एज वेल, दोबारा भी रिवाइव हो रही है, काफ़ी हद तक सक्सेस हो चुकी है। चलो ये तो अब हमने हिस्ट्री पढ़ दी, ठीक है। अब हम केस ऑफ पश्तो की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली क्योंकि पेशावर में बैठे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट पेशावर। नाउ लेट अस टर्न टू पश्तो एंड पेशावर, लैंग्वेज दैट while not extinct is experiencing serious decline in certain urban settings. Certain urban settings क्या हमारी urban throughout हमारी urban settings देख लें, वहाँ पे extinct तो नहीं हुई लेकिन serious decline चल रहा है पश्तो का, you and I know better. Historically, Pashto has been the dominant language of Peshawar, spoken widely among the local population अभी भी, लेकिन however कुछ फिर भी फैक्टर्स हैं जो कि इसको डिमिनिश करने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार, एक बहुत बड़ा रोल अदा करें। उसमें सबसे पहला अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन है, क्योंकि हम अर्बन सेटिंग्स में आ रहे हैं, हम अपने रूरल एरियाज से माइग्रेट करके जो इन्फ्लक्स है वो अर्बन एरियाज में, अर्बन हब्स में बहुत ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन को राइज कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लक्स ऑफ नॉन, अब और ये भी कि डिफरेंट एरिया से नॉन पश्तो स्पीकर्स डिफरेंट रीजन से वो भी आ रहे हैं, और ऑटोमेटिकली हमारे लिंग्विस्टिक लैंडस्केप को तो अल्टर कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेजेस लेकर आ रहे हैं। फिर हमारे पास उर्दू और इंग्लिश की बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है एजुकेशनल और प्रोफेशनल स्फेयर्स में। तो आप देख रहे हैं कि इन सब वजूहात की वजह से पश्तो तो डाई हो रही है, पश्तो तो ख़त्म हो रही है। इवन आप मुझे ये बता दें कि आप लोगों में कितने पख्तून, मैंने अगैन पिछले लेक्चर में भी ये बात की, वीव डिस्कस्ड इट अ लॉट इन आवर क्लासेस एज वेल, दैट कंपेयर योरसेल्फ टू द पीपल हु आर लिविंग इन द ट्राइबल एरियाज फ्रॉम वेयर यू कम, योर लैंग्वेज योर पश्तो एंड देयर पश्तो इज एंटायरली डिफरेंट, राइट। इवन कि आप यहाँ तक कि आपको अपनी ही लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स की समझ, आई हैव अ कलीग, आई हैव अ फ्रेंड, शी वॉज टेलिंग कि उसके अपने फैमिली मेम्बर्स, दो दे बिलोंग फ्रॉम चित्राल, येट जब वो चित्राल जाते हैं दे डोंट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ चित्राली, दो वो बोलते चित्राली हैं, बट देयर चित्राली इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द चित्राली दैट इज प्रैक्टिस्ड इन देयर एरिया, देयर होम टाउन। तो डू यू सी अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन से कितना बुरी तरह लैंग्वेज इफेक्ट होती है। और बेसिकली हम अभी पश्तो की बात करें तो दैट इज हैपनिंग। फिर हमारे पास एजुकेशनल पॉलिसीज आ जाती हैं। पश्तो इज रेयरली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स विच वीकन्स इट्स ट्रांसमिशन टू यंगर जनरेशंस। देखें, उस दिन एक स्टूडेंट आया था मेरे पास और उन्होंने कहा था कि मैम कैसे हम अपनी पश्तो को वापस रिवाइव करवा सकते हैं, या उसको, उसने तो खैर बहुत बड़ी बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम इसे कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ला सकते हैं। और हमारी डिबेट चल रही थी किसी फ्रेंड के साथ, वो स्टूडेंट बता रहे थे और उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश को इंटायरली छोड़ देते हैं और उर्दू का भी, और सारा करिकुलम पश्तो में हो जाता है। तो वेल वो एक तरीका नहीं है, वो भी एक गलत तरीका है, बिकॉज आपको ज़ाहिर है अपनी लैंग्वेज को वापस बूस्ट देने के लिए आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी होना ज़रूरी है। बट वन थिंग जो मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर जैसे कि उर्दू एक सब्जेक्ट होता है जो बच्चों को थ्रू आउट उनके प्राइमरी से मिडिल और मिडिल से सेकेंडरी और सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी तक पढ़ाया जाता है, तो वाई नॉट के आई एम नॉट, अब चूंकि यहाँ पर तो हम पश्तो की बात करें तो क्यों ना पेशावर में बल्कि तमाम केपी के करिकुलम में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी जाए कि जैसे उर्दू का एक सेपरेट पीरियड होता है वैसे उस एरिया की रीजनल लैंग्वेज का एक सेपरेट पीरियड, पश्तो का एक सेपरेट पीरियड, एक सेपरेट टीचर, एक सेपरेट करिकुलम होना चाहिए, एक सेपरेट कोर्स कंटेंट होना चाहिए जो हर स्टेज पे डिफ़र करे, ताकि वो लैंग्वेज प्रिजर्व हो, ताकि हम अपनी यंगर जनरेशन्स में उसको प्रमोट करें। देखिए ना अभी कितनी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। अक्सर आई वेंट टू द रेस्टोरेंट द अदर डे, टू अ रेस्टोरेंट द अदर डे, आई एम सो सॉरी मेरी ग्रामर क्यों मिक्स हो रही है, यू नो रोज़े के इफेक्ट्स हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू द लेक्चर एंड पॉइंट, मैं क्या देख रही थी
कि और हमारी फैमिली में भी ऐसा बहुत कुछ है, इवन आपकी फैमिली में भी होगा। छोटे छोटे बच्चे थे एंड दे वर अनएबल टू टॉक इन पश्तो, दे वर अनएबल टू टॉक इन उर्दू, बिकॉज उनको उनके माँ बाप ने बचपन से इंग्लिश सिखाई है। वो बच्चे हैं जो कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। वाई? बिकॉज उनको अपनी लैंग्वेज आ ही नहीं रही। एंड दिस इज सो स्ट्रेंज, दैट इज़ सो वियर्ड कि वो लैंग्वेज जो है हमारी ख़त्म हो रही है। तो ये चीज़, ये एग्जाम्पल भी हमें बताती है कि कैसे एजुकेशनल पॉलिसी सही ना होने की वजह से भी हमारी लैंग्वेज नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं जा रही। और सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स, अभी जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी है, यही सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से हम अपने बच्चों को सोसाइटल नॉर्म्स, सो द सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप्ड सोसाइटल सेट स्टैंडर्ड्स, उनकी वजह से हम अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं बचपन से। चलो स्कूल में तो अंग्रेजी सीखते हैं, वी टॉक टू देम इन इंग्लिश बैक एट अ होम्स एज वेल। तो क्या हो रहा है कि उनको उनकी लैंग्वेज ही नहीं आ रही। तो इस सोशल और इस इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से मैनी फैमिलीज प्रायोरिटाइज उर्दू एंड इंग्लिश फॉर सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी, और ये हो रहा है। एंड ऑफन डिस्करेजिंग देयर चिल्ड्रन फ्रॉम स्पीकिंग पश्तो, जिसकी वजह से दे डोंट इवन अंडरस्टैंड पश्तो। डू यू सी? फिर हमारे पास ये कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, ये लैंग्वेज शिफ्ट जो है, चलो कोड मिक्सिंग भी इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कोड स्विचिंग बेसिकली, और लैंग्वेज शिफ्ट जो हम करते रहते हैं। क्या हो रहा है? यंगर जनरेशन्स फ्रीक्वेंटली मिक्स पश्तो विद उर्दू और इंग्लिश, लीडिंग टू लेक्सिकल इरोजन एंड ग्रामेटिकल सिंप्लीफिकेशन। हो क्या रहा है? लेक्सिकल इरोजन हो रही है, हमारे लफ्ज़ इरोड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। हम इंग्लिश उर्दू के लफ्ज़ अपनी पश्तो में ला चुके हैं। मुझे आप ज्ञान बताएं कि आप अपने आप को कंपेयर करें अपने अपने गाँव के लोगों के साथ, तो स्टिल आपकी और उनके वर्ड सिलेक्शन में ज़मीन, बहुत चीज़ों के लफ्ज़ों को आपको पता ही नहीं है कि आपकी डायलेक्ट में क्या कहते हैं, बिकॉज यू इनकॉर्पोरेटेड इंग्लिश एंड उर्दू टर्म्स फॉर इट। सिमिलरली आपकी ग्रामर उनके ग्रामर से, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, जबकि उनका जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो डू यू सी, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है ना हमारी लैंग्वेज के बड़े फिर एक और चीज़ है जो है लैक ऑफ लिटरेचर इन रिसर्च, जो कि मैं अगैन एंड अगैन आई एम्फसाइज दैट दिस इज़ वन ऑफ द ह्यूज एलिमेंट, एक सबसे बड़ा फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है लैंग्वेज डेथ को, इवन लैंग्वेज एक्सटिंक्शन को, वो है लैक ऑफ लिटरेचर इन रिसर्च। अगर हम पश्तो की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज प्रिजर्वेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर इन दैट लैंग्वेज। अगर आप एक लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पश्तो को हम प्रिजर्व करें, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उसमें लिटरेचर प्रोड्यूस होना चाहिए, उस लैंग्वेज में रिसर्च प्रोड्यूस करनी चाहिए। इफ़ अ लैंग्वेज लैक्स सफिशिएंट पब्लिश्ड लिटरेचर, रिसर्च नहीं है उसमें, स्पेशली इन द स्टैंडर्ड डायलेक्ट जो कि पश्तो का यूसुफजई है, व्हाट विल हैपन? इट स्ट्रगल्स टू सर्वाइव। देखो अभी यूसुफजई डायलेक्ट को छोड़ दो, अभी थोड़ी सी इजाज़त मिली और कहा जा रहा है कि राइटर्स को इजाज़त दी कि अब आप बनू के डायलेक्ट में राइटिंग्स प्रोड्यूस करें, बट द स्टैंडर्ड इज यूसुफजई। एक मिक्स क्रिएट हो रहा है, एक क्योस क्रिएट हो रहा है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस जनरेट हो रहा है। हमें लग रहा है कि वी आर ट्राइंग टू से, बट एक्चुअली वी आर नियर टू लैंग्वेज एक्सटेंशन, आई मीन लैंग्वेज डेथ। दो डेफिनेटली एक्सटेंशन का भी एक पॉइंट आ ही जाएगा उसके बाद। डू यू सी? अगर मैं पेशावर की बात करूं, अभी पश्तो की, ये रिसेंटली, इट्स नॉट इवन वाइडली चोजन एज अ सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन, रेयरली हमें नज़र आता है। सीएसएस के एग्ज़ाम में होता है पश्तो, बहुत इजी सब्जेक्ट, कहते हैं उसमें मार्क्स आसानी से आ जाते हैं, बट इजी भी है, हमारी लैंग्वेज है रीजनल, येट हम में से बहुतों की मदर टंग है, येट हम उसको नहीं सेलेक्ट करते। सच अ शेम। वाई? बिकॉज हमने पढ़ी ही नहीं है पश्तो। हमें पश्तो एकेडमिक सेटिंग के मुताबिक, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्टैंडर्ड पश्तो आती ही नहीं है। अभी मैं फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं पेशावर यूनिवर्सिटी की, तो रिसेंटली कोई 20 स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं पश्तो डिसिप्लिन में, येट कोई सिग्निफिकेंट रिसर्च तो नहीं हो रही। मेरे ख्याल से अभी उसमें से भी लोग चले गए हैं और रिसर्च तो कंडक्ट ही नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है? दिस लैक ऑफ एकेडमिक एक्सप्लोरेशन, दिस लैक ऑफ लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, व्हाट इज इट डूइंग? इट इज वीकनिंग द लैंग्वेज स्टेटस, इट इज वीकनिंग द पश्तो लैंग्वेज स्टेटस, एंड it is accelerating its decline. Do you see? That is how Pashto is वो उस स्टेजेस में है लैंग्वेज डेथ के। वो हमें लैंग्वेज इंडेंजरमेंट के स्टेजेस थे ना, और एंड में एक्सटिंक्शन आ रही है, वो उन स्टेजेस में ऑलरेडी है, इफ़ यू नो। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे कहूँ कि इस पश्तो डाइंग इन पेशावर, वेल पश्तो इज नॉट कंप्लीटली एक्सटिंक्ट इन पेशावर, जाहिर सी बात है, इट इज़ अनडाउटेडली
इंडेंजर्ड इन अर्बन सेटिंग्स। अब अर्बन सेटिंग्स में आप देखें, यहाँ पर तो बगैर किसी डाउट के इंडेंजर हो रही है और बड़े ख़तरनाक लेवल तक पहुँच रही है। दो द ट्रेंड सजेस्ट्स दैट इफ़ द करंट पैटर्न कंटिन्यूज, अगर ये चलता रहा तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि द फ्यूचर जनरेशन्स में नो लॉन्गर स्पीक इट फ्लुएंटली। अभी भी वो एंडेंजरमेंट का हमने कौन सा स्टेज पढ़ा था, अभी भी हम उस स्टेज में तो मौजूद हैं। हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्या है, उसको हम इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो दे आर नॉट इवन यूजिंग पश्तो एज ए लैंग्वेज, उनको पता भी नहीं, उनको समझ ही नहीं आता। तो होगा क्या, इट विल अल्टीमेटली लीड टू इट्स एवेंचुअल लैंग्वेज डेथ in the city of Peshawar. तो yes, language is in process of dying and it soon will, अगर ये पैटर्न चेंज या कट नहीं किया गया। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि स्टार्ट पब्लिशिंग, स्टार्ट लर्निंग। आप अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज लर्न करें, समझें, फिर उसको पब्लिश करें, क्योंकि आपने पश्तो को अब रिवाइटलाइज करना है। हाउ कैन यू रिवाइटलाइज इट? तो रिवाइटलाइजिंग पश्तो का पॉइंट क्या कहता है, टू prevent Pashto from becoming an endangered language in Peshawar. Efforts need to be made. और उसमें सबसे पहले है promote Pashto in education by including it in school curricula. वही बात जो मैंने आपको कही कि एज अ सब्जेक्ट पश्तो को इंट्रोड्यूस करना चाहिए राइट फ्रॉम द प्राइमरी लेवल, तब ही सिर्फ और सिर्फ आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है टू इनकरेज मीडिया रिप्रेजेंटेशन सच एज पश्तो लैंग्वेज, टेलीविजन, बुक्स एंड डिजिटल कंटेंट। हमारा जितना भी टीवी है, जितना भी हमारा मीडिया है, सारा उर्दू बेस्ड है। इवन वी डू हैव पंजाबी थिंग्स बट स्टिल वो इतना ज़्यादा, लेकिन पश्तो तो बिल्कुल भी नहीं है। वो आते थे पहले पश्तो के अच्छे ड्रामे, अब तो डू यू सी द सिनेमा एंड द ऑल, जो सबसे करप्ट, सबसे वल्गैरिटी अगर आपको मैं कहूँ दिखाई जाती है, तो हम उस डर से ना खुद देखते हैं ना बच्चों को, क्योंकि हमें वो कल्चर तो दिखाया ही नहीं जा रहा जो कि एक्चुअली पख्तून कल्चर है। तो क्या होना चाहिए उसके लिए, एक प्रॉपर सेंसर्ड सही तरीके से कल्चरल स्टैंडर्ड पश्तो लैंग्वेज टेलीविज़न का होना बहुत ज़रूरी है, पश्तो लैंग्वेज मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। इवन फिर बुक्स और डिजिटल कंटेंट में भी, हमारे डिजिटल कंटेंट में दूर दूर तक पश्तो का कोई ताल्लुक नहीं है। कहाँ पे है, कहाँ पे, मैं तो नहीं देखती। इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडियाज़ के हमारे जितने अकाउंट्स हैं, टिकटॉक पे बजाते मैं खुद उधर अंग्रेज़ी बोल रही होती हूँ। नहीं, आई एम जस्ट बीइंग वेरी वेरी ब्लंट राइट नाउ। और फिर इंस्टाग्राम में हम पोस्ट्स, आई सी ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड एवरी वन, यू पोस्ट स्टेटसेस, क्या नीचे पिक्चर के नीचे अंग्रेजी में लिखा, यूज़ योर ओन डैम लैंग्वेज। वाई आर यू, ये डेथ डेथ की तरफ जा रही है, एक्सटेंशन की तरफ। हाउ वुड इट बी रिवाइव्ड? सिर्फ इसी तरीके से कि हम उसमें पश्तो को इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। फिर हमारी बुक्स, दो मैंने रेयरली देखा है कि पश्तो की कोई पब्लिकेशन आ रही, कोई नहीं पब्लिश करा। फिर एक आध मोटी क्लासिक बुक निकलती है विद वेरी डिम, वेरी सैड, वेरी ऑम्बर, सॉरी मेरी अंग्रेजी को फिर सॉम्बर कलर्स। तो क्या मैं देख रही होती हूँ कि उसको कोई पढ़ना भी नहीं चाह रहा होता, और वो फिर मोटी मोटी क्लासिक होती हैं और बिल्कुल तो हमें इसमें, हम इसकी प्रमोशन में, इसकी प्रोजेक्शन में काम करना चाहिए, ताकि वो अट्रैक्टिव बुक्स हो, छोटी छोटी हों, ईजी टू गो हों, लोग पढ़ सकें और प्रिंट की जा सके, राइटिंग शुरू हो जाए। सिर्फ ओनली एंड ओनली दैट वे यू कैन रिवाइटलाइज दैट लैंग्वेज बैक। फिर कम्युनिटी इनिशिएटिव्स दैट इनकरेज स्पीकिंग पश्तो एट होम एंड इन पब्लिक स्पेसेस, ये बड़ा ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वी डू स्पीक पश्तो बैक एट आर होम, लेकिन अभी उसमें भी क्या हो रहा है, वी हैव कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, प्योरली वी आर नॉट यूजिंग पश्तो एट ऑल। हमारी ना वो धोबी के कुत्ते वाली मिसाल है, जो ना घर के ना घाट के, ना हमें अंग्रेज़ी समझ पूरी आई है, ना उर्दू पूरी आई है, और ना अपनी ज़बान पूरी आई है। तो हमारी वो मिसाल है। अब ये वाहिद कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। दो, मैं ये तो नहीं कहती कि तमाम स्टेप्स हैं, फिर इसमें दो हमारे पास और आ जाते हैं, लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन, प्रिजर्वेशन थ्रू एकेडमिक रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। हमारे पास रिसर्च सेंटर्स ही नहीं है। फिर अकेले मैं पश्तो की बात करूँ, हमारे पास इंटायरली रिसर्च सेंटर्स नहीं है। पश्तो तो फिर दूर की बात रह गई है। तो फिर हमारे रिसर्च कहाँ से, अगर रिसर्च सेंटर्स हमारे ये इनिशिएटिव्स लिए जाएँ, पश्तो में रिसर्च पब्लिश की जाए, आप इंग्लिश में करें रिसर्च, लेकिन पश्तो पे करें रिसर्च। एंड देन अगैन इंक्रीजिंग लिटरेरी प्रोडक्शन। अब वही वाली बात जो मैंने बुक्स की बात की, पब्लिश करो बुक्स को पब्लिश करो, रिसर्च पेपर्स को। मैं इंग्लिश का पब्लिश पेपर नहीं देखती, वो तो एक अलग बात है। पश्तो तो फिर छोड़ ही दें, मैंने आज तक नहीं देखा कोई। तो लैंग्वेज को आप कैसे वापस ज़िंदा करेंगे?
हम क्यों हर चीज़ इंटरनेशनल सतह पे भाग रहे हैं? पहले आप अपने नेशनल सतह पे, अपने रीजनल सतह पर ही पब्लिश करना शुरू करें। पब्लिशिंग हाउसेस होने चाहिए, रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए, जहाँ पे पश्तो के पेपर्स पश्तो में ही पब्लिश हो। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा जो अचीव हो जाएगा। एंड देन क्रिएटिव वर्क्स इन पश्तो, पोम्स, पोइम्स या पोम्स जो भी आप कहना चाहें, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेलास, नॉवेल्स तो चलो फिर बड़ी बात है, बट अगेन यस, ये जैसे उमेरा अहमद इतने मज़े मज़े के उर्दू के नॉवेल्स लिख रही होती है, व्हाई कैन नोबडी राइट गुड उर्दू, सॉरी गुड यूसुफजई एक्सेंट, यूसुफजई डायलेक्ट पश्तो नॉवल जो स्टैंडर्ड है, कोई क्यों नहीं लिख सकता? तो यही बात है, अगर कोई लिख भी रहा होगा तो आई डोंट थिंक सो, अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, वरना तो ये सोशल मीडिया पे तो खामखा बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है ये बात। तो बहरहाल ये कुछ इकदामात हैं जो मैंने मेंशन किए हैं, सम ऑफ द स्टेप्स, और उसके अलावा यू आर ब्राइट, यू हैव ब्रिलियंट आइडियाज़। आप और कुछ प्रिजर्वेशन के बारे में सोचें, यू कैन रिवाइटलाइज योर लैंग्वेज बैक। तो राइट नाउ यस, पश्तो इज़ इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग, and you can preserve it and revitalize it only if you make your efforts in the right direction. Whereas my final thoughts on this very lecture are that languages are a reflection of cultural identity, and when a language dies, the entire world view disappears with it. जाहिर है, पूरा literature, पूरी एक era, पूरी एक civilization चली जाती है गायब, as if nowhere, as if was never there. While some languages have perished due to historical events, other like कुछ तो गायब हो गई हिस्टोरिकल इवेंट्स में की वजह से पैरिश हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, लेकिन पश्तून पेशावर अभी भी होप्स हैं. इट कैन स्टिल बी प्रिजर्व्ड विद conscious efforts from individuals to academics and to policymakers. And the fate of Pashto largely depends on whether it remains a subject of research and literature production in the coming decades. अगर तो है तो yes, अगर तो नहीं है तो I'm so sorry, वो दिन दूर नहीं है जब पश्तो would be a dead language, and वो दिन तो उससे भी ज़्यादा दूर नहीं है when it will be an extinct language. And हमारी generations कहीं पे पढ़ी थी कि once upon a time there was a dominant language पश्तो in Peshawar and in KP. सुन के बुरा लगा ना, मुझे बोल के बुरा लगा, तो think upon it, ज़रा सोचिए. And with that, I would be concluding my today's lecture. Have a very good night and best of luck for your second sahur.